Good morning to all. In the last class, we have studied about the goals or objective of planning in India during the 1950 to 1990. The next topic is evaluation of achievement of goal or objective of the 5 year plans. मतलब कि इसमें क्या करना है कि इवेलुएट करना है कि जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव वॉट एवर द सेट फॉर द पीरियड ऑफ 1952 और 1990, is it achieved or not? Let's start. The economic planning in India was introduced to achieve the goals of growth, modernization, self-reliance and equity. These all are the objectives of the planning. Let us now see the first 7 5-year plans covering the period 1950 to 1990 attempted to attain these 4 goals and extent to which they succeeded in doing so with reference to agriculture, industry and trade. ये देखा जा रहा था कि जो 1950 और 1970 के मिड टर्म में जितने भी 7 5-year प्लान्स को हमने इम्प्लीमेंट किया था, क्या उनमें ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने ले रखे थे, क्या ये सारे अचीव हो पाए थे कि नहीं, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज वेल एज ट्रेड में. तो हमें क्या करना है, इन तीनों सेक्टर में ये देखना है कि जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स ले रखे थे, ये तीनों सेक्टर में स्पेशली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड में ये सारे फुलफिल हो पाए थे कि नहीं हो पाए. तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर. Agriculture is the backbone of Indian economy. Agriculture refers to all those processes which are related to production of the food crops, basically rice, wheat, jowar, and non-food crops like jute, cotton, etc. Agriculture produce goods through exploitation of the natural resources. Okay, as we all know, agriculture is the backbone of the Indian economy, basically Indian economy. Agriculture refers to all those process which are related to production of the food crops as well as non-food crops. Okay, इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर रेफर टू ऑल दोज प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस विच आर रिलेटेड टू, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, कि हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड क्रॉप्स का, जिसमें वीट, राइस, ज्वार, जो भी ईटेबल आइटम्स है वो, एज वेल एज नॉन फूड क्रॉप्स की जो है क्या है, जिनसे हम कुछ फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ दीज फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गुड्स थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी एक्सप्लॉयट द नेचुरल रिसोर्सेज, वॉट एवर नेचुरल resources available to us, we exploit and then produce the final goods. State of agriculture on the eve of independence. At the time of independence, the agriculture sector was saddled with the surplus labor, extremely low productivity, defective land tenure system. Therefore, the agriculture sector, which accounted for the largest share of workforce, needed immediate attention. ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम क्या देख रहे थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उस पर 75 to 80% क्या थी, आपकी पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी ऑन एग्रीकल्चर. तो वहाँ पे जो सैडल्ड मीन्स लोडेड, वहाँ पे क्या लेबर इज सरप्लस थे और प्रोडक्टिविटी इज़ एक्सट्रीमली लो, मतलब इतनी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे, स्टिल वहाँ की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखा गया. एंड जो लैंड टेन्योर सिस्टम था कि लैंड पे कैसे वर्क करना है, ओनर से लेके उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके किसका कितना पार्ट है, दीज ऑल आर द defective system, and whatever the produced by the farmer, they have taken by the all the zamindars especially. Therefore, the agriculture sector, which accounted for the largest share of workforce, needed immediate action. ठीक है, जिसमें largest share workforce थी, जो people थे इस पर सबसे ज़्यादा engaged थे, still it needs to immediate action, कि हमें कुछ लेना पड़ेगा, attention लेना पड़ेगा, so that we can change all the prospectors. Policies, reform measures to solve agriculture problem. What are the different problems which we suffer in the agriculture? So there are different policies, reforms were made to basically reform the agriculture sector, so that the process from which we are producing the products, it will become more effective and more productive.
So we have learned in the previous chapter that during the colonial rule there was neither growth nor equity in the agriculture sector. Okay, कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कॉलोनियल रूल था तो बट कोई भी उसमें हमने ग्रोथ और इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं देखा. देयर वर नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income, there is regional variation, and we colonial government doesn't talk about the growth of the Indian. Therefore the policy makers of the independent India had to address these issues, which they did through the land reform and promoting the use of HYV seeds, which ushered in a revolution in the Indian agriculture. Okay, तो जो भी पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड्रेस किया कि हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ऐसे कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे जिससे जो टोटल एग्रीकल्चर सिस्टम है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए. लैंड रिफॉर्म करवाया. लैंड रिफॉर्म वी विल डिस्कस इन फर्दर. प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसमें HYV सीड्स का क्या हुआ, मोर एंड मोर यूज़ हुआ, सो दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर विल इंक्रीजेज. दीज आर दी कॉल्ड अग्रेरियन रिफॉर्म और द रिफॉर्म इन द इंडियन एग्रीकल्चर. सो इसको क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आया कि एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन रिफॉर्म की और रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर. ये सारे क्या थे, आपको रिफॉर्म लेकर आए थे एग्रीकल्चर में. ओके, रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3: इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म; टेक्निकल रिफॉर्म, दैट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन; एंड जनरल रिफॉर्म, दैट इज़ अदर रिफॉर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, विच इज़ बेसिकली इन अदर सेक्टर, इन अदर प्रॉस्पेक्टस. फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे कि उन सारे अदर रिफॉर्म्स में क्या क्या आए थे. नाउ फर्स्ट टेक द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. Institutional reform or land reform. Land reform refers to the change in the ownership of the land holding. These were required to achieve the objective of equity in agriculture. Okay, land reform का क्या मतलब होता है कि जो भी land hold, जो भी कोई भी ओनर है उसको चेंज करना कि जितना भी वो लैंड होल्ड करके रखा है. कैसे चेंज होगा कि सिंपली इसका मतलब यही होगा कि जो ऐसा हम लोग ने देखा कि जो भी बहुत ज़्यादा एक एफिशिएंट सोसाइटी के जो पीपल थे उनके पास क्या होती थी, बहुत ज़्यादा लैंड होती थी, और कोई एक पुअर पीपल होता था, लैंडलेस पीपल होता था, मतलब उनके पास कुछ भी लैंड नहीं होती थी. तो ये जो ओनरशिप थी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको क्या करना था, बेसिकली चेंज करना था. अब वो चेंज कैसे होगा अभी ये पढ़ते हैं हम आगे, बट इसमें यही था. लैंड रिफॉर्म होने का मतलब है कि रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग. जो भी लैंड को होल्ड करा था उसके ओनरशिप में हमको क्या करना था, चेंज करना था. दीज वर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी. ठीक है, ये बेसिकली क्यों हो रहा था कि देयर विल बी इक्विटी इन दी एग्रीकल्चर ऑल्सो, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो आपका लैंड का भी. तो दीज वर एबॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरी. एबॉल्यूशन मीन्स कि इरेडिकेट करना, रिमूव करना. किसको हमको रिमूव करना है, जो भी इंटरमीडियरीज़ हैं. इंटरमीडियरीज़ कौन होगा, इंटरमीडियरीज़ आपके हो जाएंगे ज़मींदार, जागीरदार. मीन्स कि फार्मर इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड अल्टीमेटली उसको कहाँ पे लेके जाना है, मार्केट में लेके जाना है. बट इनके बीच में कौन आ जाते थे, ज़मींदार और जागीरदार, जो उस गुड्स को क्या करते थे, ज़्यादा हायर पे करना पड़ता था फार्मर को, सब प्रोडक्ट को, उनकी वैल्यू जो भी प्रोड्यूस करते थे वो सारा अमाउंट उनको दे देना पड़ता था, और वो अपने लिए कोई भी फार्मर्स कुछ नहीं रख पाते. तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंटरमीडियरीज़ हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा एंड इरेडिकेट करना पड़ेगा. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस the land tenure system was characterized by the intermediaries who were merely collected rent from the actual tiller of the soil without contributing towards improvement on the farm. ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिस्टम हमने देखा कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम था उसमें क्या था, इंटरमीडियरीज थे, वो क्या करते थे
कि बस उनका बेसिकली मेन मोटिव ये होता था कि वो जो टिलर होते थे, जो काम कर रहे हैं किसी भी फार्म पे, उनसे वो क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे, और वो ज़्यादा फोकस उस पर नहीं कर सकते थे कि कैसे हम उस फार्म में या उसकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करें। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस ये चाहिए था कि जितना फार्मर है, जो भी टिलर है सॉइल का, जो भी ओनर है सॉइल का, या द वन हु इज़ डूइंग एनी वर्क ऑन दी लैंड, उनसे क्या करता था, बस वो एक सिंपली उनको बस रेंट लेना था, और वो उस लैंड के प्रोडक्टिविटी की, कैसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, इस पे वो क्या करते थे, कोई भी काम नहीं करते थे। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम दी USA एंड अदर कंट्री। जो प्रोडक्टिविटी, there is low productivity of the agriculture sector that force India to import basically food items from the USA and the other countries also, कि इतनी प्रोडक्टिविटी इंडिया में थी नहीं, बट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ वेरी हाई, सो द इंडियन हैज़ टू फोर्स टू इम्पोर्ट द गुड्स फ्रॉम द USA। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर द लैंड रिफॉर्म। इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में अगर इक्विटी आती है, इक्वल सब कुछ होता है, तो हम क्या कहते हैं, इसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं। जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू एबॉलिश इंटरमीडियरीज एंड टू मेक द टिलर द ओनर्स ऑफ द लैंड। ओके, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हमने ये किया कि जो भी ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जो भी इंटरमीडियरीज थे इनको एबॉलिश किया गया, इनको रिमूव किया गया, और जो भी टिलर थे, जो इस पे काम करते थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया, लैंड का ओनर बना दिया गया। The idea behind this move was the ownership of land would be give incentives to the tillers to invest in making improvement provided sufficient capital was made available to them। इसके पीछे ये आइडिया होता था कि अगर उनको क्या कर दिया जाएगा, उन्हें ओनरशिप मिल जाएगी कोई भी टिलर को, तो वो क्या कर पाएंगे, उनके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगा तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कर सकेंगे, सफिशिएंट उनके पास कैपिटल होगा। ऐसे क्या होता था, जो भी होता था उनको पूरा ज़मींदार को पे करना पड़ देता था। अब ऐसा है क्या कि अगर वो ओनर हो गए तो अब उनको किसी को पे करना नहीं है, तो वो पूरे अमाउंट को क्या कर सकते, प्रॉपर यूटिलाइज़ करके उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी लैंड पे, और मोर प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेज। प्रॉब्लम इन एबॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब व्हाट द प्रॉब्लम आर अराइजेज इन abolition of intermediaries? The abolition of intermediaries means that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government। okay, कि इससे क्या हुआ कि 200 लाख टेनेंट वही कि जो पर्सन हु ऑक्यूपाइड लैंड फ्रॉम दी ओनर्स, कि उन क्या करते हैं, टेनेंट मीन्स कि जो लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ओनर से, वो क्या किए, वो डायरेक्ट कांटेक्ट आ गए, किसके कांटेक्ट में आ गए, डायरेक्टली वो कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। दे वर दस फ्रीड बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दी ज़मींदार। अभी क्या हुआ कि इससे क्या हो गया कि वो जब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए तो वो क्या हो गए, फ्री हो गए, जो सारे एक्सप्लॉइट हो रहे थे ज़मींदार से। द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टेनेंट गेव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ, जो ओनरशिप थी वो डायरेक्टली रिलेट किससे हो गई, टेनेंट से। टेनेंट को क्या करने लगी, टेनेंट को बेसिकली इंसेंटिव्स इससे मिलने लगा कि उनको मोर और मोर प्रॉफिट हुआ। अब वो उससे क्या करेंगे, जब प्रॉफिट उनको ज़्यादा होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली उनका आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। However, the goal of equity was not fully served by the abolition of intermediaries। अभी भी जो इक्विटी, जो गोल लेके चले थे इक्विटी का, still not fulfilled। In some area, the former zamindar continued to own large area of land by making use of loopholes in the legislation। कि अभी भी कुछ ऐसी loopholes की मीनिंग होती है कि उसके ड्रॉबैक्स, कि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे ज़मींदार क्या करते थे कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड ले लेते थे और वहाँ उनसे क्या करते थे, टिलर से ज़्यादा रेंट को कलेक्ट करते थे। बेसिकली उस एरिया में जहाँ पे ये जो
जो लेजिस्लेशन था, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो सब वहाँ पे बहुत लेस अमाउंट में था। मतलब बहुत ड्रॉबैक थी, इतना गवर्नमेंट उस एरिया उस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो भी ज़मींदार थे उस एरिया के, वो अभी भी अपना इम्प्रेशन वहाँ पे बना के रखे थे और वहाँ से अभी भी वहाँ से वो रेंट कलेक्ट कर रहे थे। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर evicted and the landowner claimed to be self cultivators claiming ownership of the land। ऐसे भी कुछ केसेस थे। देयर वर टेनेंट्स वर एविक्टेड, जो भी टेनेंट्स थे, जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको ओनर ऐसे ऑक्यूपाई कर दिया गया था, उनको क्या कर दिया गया कि वहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। एंड दी लैंड ओनर क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर, और जो लैंड ओनर थे वो क्या करने लगे, क्लेम करने लगे कि सेल्फ कल्टिवेट करेंगे, वो खुद उसको क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। वो ये कहने लगे कि जितने अलग जो टेनेंट्स थे, जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था उस लैंड को, जो ओनर का था, जो गवर्नमेंट के थ्रू, तो अब वो जो सारे ओनरशिप थे जिनका लैंड होता था, वो ये बोलने लगे कि उन्होंने सारे उस टेनेंट्स को निकाल दिया और बोला कि ये मतलब मेरी लैंड है और इस पे प्रोडक्टिविटी मेरी ओर से होगी। Even when the tiller got ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from the land reform। ठीक है, जो टिलर्स थे उन्हें ओनरशिप मिल गई, स्टिल वो क्या थे कि एग्रीकल्चर जो लेबर थे वो इससे बेनिफिटेड नहीं हुए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी एरियाज़ थे कि जहाँ पे इंटरमीडियरीज होते थे और उनसे वो रेंट लेते थे, या कुछ एरियाज़ में जो भी आप लैंड वो ओनर थे वो क्या किए कि जितने को भी गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड की थी, क्या किया, उससे उनसे ले लिया और वहाँ पे अपना वो सेल्फ कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज़ लैंड सीलिंग। फर्स्ट क्या था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, एबॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज़, की इंटरमीडियरीज़ को एबॉलिश करना है, रिमूव करना है। सेकेंड इज़ लैंड सीलिंग। It was another policy towards land reform to promote equity in the agriculture sector। ओके, ये नेक्स्ट एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जिसमें क्या करना था, इक्विटी करना था बेसिकली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। This means fixing the maximum size of the land which could be owned by an individual, and beyond that limit the land would be taken over by the government and would be allotted to the landless cultivator and the small farmers। देखिए इसमें क्या था कि गवर्नमेंट का क्या रोल हो गया कि वो एक मैक्सिमम साइज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, किसी भी लैंड की एक मैक्सिमम साइज़, आप समझ लीजिए आपके क्लास की या आपके रूम की जहाँ पे आप हो, वहाँ की एक कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो लिमिट कि किसी भी लैंड की क्या मैक्सिमम साइज़ होगी। उतना लिमिट क्या करता था, उतना अमाउंट ऑफ लैंड किसी इंडिविजुअल को देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास बहुत लैंड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसने जो भी एक लिमिट को अपना डिसाइड किया था उसको वो मेजर करती थी, उतना अमाउंट ऑफ लैंड वो मेरे लिए छोड़ देती थी, और जितना लेफ़्ट आउट बचा, जितना अगर एक्स्ट्रा लैंड है वो गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती थी। और फिर उस लैंड को क्या करती थी गवर्नमेंट, जो भी लैंडलेस पीपल हैं, जो भी लैंडलेस टेनेंट हैं, उनको क्या कर देती थी, वो प्रोवाइड कर देती थी। इससे क्या होगा कि जो लैंडलेस पीपल है, जिनके पास कुछ नहीं है प्रोडक्शन के लिए, अब वो भी क्या कर सकते हैं, उस पर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि वो ऐसे वो भी क्या होंगे, एनकरेज होंगे, ऐसे उन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है कि जो लैंड क्या थी कि बाइस्ड हो गए थे एकदम, कि बस जो रिच पीपल थे, जो ओनर थे, वो क्या थे कि उन्हीं के पास होती थी, अदर पीपल के पास नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने एक लैंड सीलिंग किया कि एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दिया एक लैंड की, उतना अमाउंट मेरे लिए छोड़ेगा या किसी भी एक पर्सन के लिए छोड़ेगा, फिर जितना लेफ़्ट बच गया उसको क्या कर देगा, किसी लैंडलेस पीपल को, लैंडलेस कल्टिवेटर या स्मॉल फार्मर्स को वो दे देगा। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड। ठीक है, बेसिक जो पर्पस इसका यही था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है लैंड का वो बस फ्यू हैंड में ही रह जाता था, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ नॉट एफिशिएंट टू हैव सच अमाउंट ऑफ लैंड। तो इससे क्या था कि वो बस फ्यू हैंड में रह जाता था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया कि कुछ लैंड एक लिमिट करके जितनी भी लैंड बचती थी वो
अदर जो कल्टिवेटर्स है स्मॉल फार्मर्स को वो दे देती थी। एंड टू प्रमोट इक्विटी इन दी एग्रीकल्चर, इससे क्या होगा, इक्विटी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इक्विटी क्या करेगी, रन करेगी। Next is problem in land ceiling. There is also problem occurs in the land ceiling. The land ceiling legislation also faced hurdle. Okay, यहाँ पे भी क्या था, लैंड सीलिंग जो प्रोसेस था, प्रोग्राम था, इसमें भी बहुत सारे हर्डल प्रॉब्लम थे, ऑब्स्टिकल्स थे। द बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट, डिले इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इसमें अब क्या था, इनकी स्ट्रैटेजी, जो बिग लैंडलॉर्ड थे, जो ओनर लैंडलॉर्ड जो थे, जिनके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड होती थी, वो क्या करते थे, चैलेंज कर देते थे कोर्ट में। इससे क्या होगा, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि अभी क्या है, ऐसे क्या होगा, गवर्नमेंट आएगी इतना छोड़ के और सब कुछ दे देगी। अब वो क्या करेंगे, लैंड जो लैंडलॉर्ड है वो उसको कोर्ट में कर देंगे। कोर्ट में करने से क्या होगा, ये कुछ दिन उसमें कोर्ट में चलेगा, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाएगा, टाइम लग जाएगा। दे यूज़ दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड इन द नेम ऑफ द क्लोज रिलेटिव। अब क्या करेगा, अब मेरा ही है, अब जैसे मेरी लैंड है बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट आएगी मेरे से वो लैंड ले लेगी। तो उस कंडीशन में क्या सब करते थे, जैसे मैं क्या करूँगी उसमें कि कोर्ट में उसको कर दूँगी, कोर्ट में कर दूँगी, तो अब उसका क्या है, केस चलेगा कुछ दिन। जब तक केस चलेगा तब तक मेरे को क्या करना है कि मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, ब्रदर सिस्टर कज़न्स जो है, उनके नाम से मेरी एक्स्ट्रा जो भी लैंड है वो मैं उनको दे दूँगी, ये कहने के लिए कि मेरी तो बस इतनी ही लैंड है और सबकी उतनी है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट ले नहीं पाएगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके नाम से अब रजिस्टर हो गई है, तब थोड़ी थोड़ी लैंड क्या हो जाएगी, उनकी हो जाएगी। तो दीज ऑल आर दी प्रॉब्लम अकर इन दी लैंड सीलिंग ऑल्सो, देयर बाई स्केपिंग फ्रॉम दी लेजिस्लेशन। इससे क्या होगा कि वो गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, लैंड भी नहीं ले पाएगी। ये दीज ऑल आर दी स्ट्रैटेजीज विच इज़ मेड एट द टाइम ऑफ, मतलब ऐसी सारी भी स्ट्रैटेजीज़ बन रही थी कि लोग कैसे बचने के लिए क्या कर रहे थे। तो ये था कि बेसिकली वो कोर्ट में चलता रहेगा, उतना उनके पास टाइम मिल जाएगा, वो अदर पीपल अदर रिलेटिव से अपने वो सारे को रजिस्टर करा देंगे अपनी लैंड, और वो जितना अमाउंट है वो गवर्नमेंट को दिखेगा। जब ये सब हो जाएगा तो बाद में वो सब ना अपनी लैंड को वापस ले लेंगे। The legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landholder to retain their land। ठीक है, ये जो legislation जो था, ये जो सारा execution हो रहा था, इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे, वर एक्सप्लॉइटेड। वो सारे एक्सप्लॉइट कौन करा था, जो भी बिग लैंड होल्डर्स थे, टू रिटेन देयर लैंड, अपनी लैंड को रिटेन करने के लिए वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को भी क्रिएट करे थे। कंक्लूजन, land reform was successful in Kerala and West Bengal because these states had the government committed to the policy of land to the tiller. These land reform system is only successful in Kerala and West Bengal. Unfortunately, other states did not have the same level of commitment, and vast inequality in the landholding continues to this day. ठीक है, कि और जो अदर स्टेट्स थे वो इस कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, एंड देयर इज़ इनइक्वालिटी अकर्स इन अदर स्टेट ऑल्सो। दीज ऑल आर द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ when the different goals and objectives were executed, implemented at the time of 1950 to 1990, and there is two types reform were happened: abolition of agriculture and abolition of intermediaries and the land ceiling.